might not be aligned. You might have some time more to give to this preparation before you actually get success. It has less to do with your mentor if he has actually given everything he could to you, and more to do with whether your time is there to actually excel in this exam or not. Right? So just trust the process. I've said that in the last session as well, because that is all you can do in this exam. And you will do great. If you have any doubts, I didn't come prepared for this. Just I came to meet him and he was like, class है चलो बात कर लेते हैं. तो अगर कुछ किसी का कोई doubt है, anything I can answer. I can give a short introduction about myself. I am a lawyer. Like I have a law background. After that, I worked for a couple of years in Delhi, and then I'm currently working as a law officer in Indian Oil. I'm posted in Calcutta only. So this attempt I gave with my job, full-time job. So yeah, it seems unlikely, right? 9 to 6 जॉब करो, उसके बाद कैसे होगा? पहले अटेम्प्ट में जॉब नहीं कर रहा था मैं और नहीं हुआ. इस अटेम्प्ट में मैं पूरे टाइम जॉब कर रहा था लेकिन हो गया. That's what I'm talking about here, right? So you actually do not know when this thing is going to click for you. So you have to be at it. That's the first rule of the game. Trust the process, because ultimately what happens is once you fail one of the attempts or at any juncture, you will start kind of villainizing this exam itself. You must have seen a lot of that stuff on social media, right? That बेकार exam है, people waste their lives here. But people waste their lives here because it is worth it, right? Because what you get in the end is actually worth it. You get to lead the policy space of this country, right? So which is something youngsters of today should actually aim for. Yes, this is difficult, but this is something which we aim for because it is worth it. So keep that in mind. Keep why you came into this preparation, why you want to be a civil servant in your mind, and trust the process, trust your mentors, and I think you all will do great. Okay? Any questions? I can entertain a few questions before. That's great. इसमें से भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो. मेरा ऑप्शनल लॉ था, बट लॉ ऑप्शनल बहुत स्कोरिंग नहीं होता. बट वही बात है, आई नेवर. हाँ. How well were you scoring in these exams before you actually cracked the exam? What exams? Like the mock tests that were being conducted over here, like were you scoring like very good, excellent? No, actually not. So that is the thing I'm talking about. So mock tests are there to just judge your writing skills prima facie, and if you get extraordinary marks in mock tests, that is actually counterproductive, because then you think that you've aced this particular subject and you don't need to touch it anymore. So that shouldn't happen. Overconfidence. Yes. So your mock test, I guess evaluation is more critical than it happens in UPSC. Why? Because they are actually preparing you for that stage. That stage wherein the questions which you will get in the exam will not be predictable. They might ask anything from that particular policy space. So that preparation, what is required is that you should, kind of have that, you should have gone through that criticality which the evaluation here should, right? So don't concentrate on marks here. Obviously, try, if you start from 60, let's just say, if you start from 60, try to go till 90. But do not think that, oh, I'm just scoring 90, I won't get anything. No. Just concentrate on improvement, that's it. Yeah? Anything else? किसी का law optional है? Thank God. Better safe. I should have ditched law optional as well, but it's just. A student was saying me कि sir law optional वाले भैया से मिलवा दीजिए. लॉ ऑप्शनल देखो यार, मेरा ये है कि मेरा बैकग्राउंड लॉ है, ठीक है, और मैं ना ऐसे बहुत ऐसे लॉयल्टी वाला इंसान हूँ कि मेरा बैकग्राउंड अगर लॉ है तो मैं लॉ नहीं कर, भले ही मेरे को कम मार्क्स करें, मेरे को नहीं फर्क पड़ता. मैं 300 नहीं लाना चाहता. मैं 270 280 में काम चला लूँगा, लेकिन मेरे को लॉ ऑप्शनल ही कंटिन्यू करना है. वो पता नहीं कुछ है मेरे दिमाग में प्रॉब्लम है. बट तुम लोग सोशियोलॉजी अंदर होकर ले लेना. मैथ्स पीएस है यार. कौन सा ऑप्शन है? यही हो गया सारा. Yes, I They are very new. अच्छा, they have not started I thinking don't about know it. how many of them has opted. हाँ, बट यार ऑप्शनल चूज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो इंटरेस्ट होना चाहिए पहली बार, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होना चाहिए, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू गो थ्रू द एंटायर सब्जेक्ट वेल. और उसके अलावा कंसाइज सिलेबस हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यू विल बी एबल टू कवर इट वेल. रिसोर्सेज अच्छे मिल पाए, दैट इज ऑल्सो गुड, बिकॉज TSIR, सोशियोलॉजी और ये सब लोग इसलिए लेते हैं बिकॉज इनके रिसोर्सेज मार्केट में बहुत आसानी से अवेलेबल है. अदर ऑप्शन जैसे लॉ ऑप्शन नहीं है अभी, तो फिर भी थोड़े बहुत रिसोर्सेज आ गए, बट इट्स जस्ट वेरी फ्यू एंड फार बिटवीन. हमको बीच में
मतलब खुद से ही बिल्डअप करना पड़ता है दैट व्हाट वी नीड टू स्टडी इन दैट। तो इसीलिए थोड़ा डिफिकल्ट है, बट हाँ ऑप्शनल चूज करना इज ऑल्सो वेरी क्रिटिकल, बिकॉज ऑप्शनल में ना देखो ऑप्शनल ऐसे और एथिक्स में बहुत रेंज होता है, ठीक है। ऑप्शनल में एक इंसान होगा जो 200 स्कोर कर रहा है और दूसरा इंसान होगा जो 300 350 स्कोर कर रहा है, वहाँ पूरा गेम खत्म हो जाता है। एक इंसान टॉप 10 में आता है और एक इंसान बाहर हो जाता है लिस्ट पे। तो इसलिए ऑप्शनल सोच के, मतलब ये नहीं कि मेरे सारे फ्रेंड्स ले रहे हैं तो मैं भी ले लेता हूँ, थिंक अबाउट व्हाट ऑप्शन यू वांट टू टेक एंड अकॉर्डिंगली टेक एन ऑप्शन, ठीक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। एनीथिंग एल्स? Even your law, like the whole law course you did and then you practicing law. हाँ, so I completed my law in 2019. Then I practiced it in Delhi for 2 years. After that, I completed my post-graduation in law, that is LLM, from Delhi itself. Then there is another exam called CLAT, PG. Okay, yeah, great. So in that, if you have like a good rank, then please PSU call you for interview. I gave interviews with ONGC, Indian Oil seemed better. They posted me at Calcutta for some reason I'm not aware of. I got into Mumbai Law College, Mumbai Law College. But then because of my family pressure, I had to drop it out. Okay. No, that's great. What did you do ultimately? History honors. That's also history. तो अभी history option ले लो यार, सही रहेगा। बहुत राइट। हाँ, बहुत सही, अभी तो सही जा रहा है ऑप्शन को। तो ठीक है, मतलब अभी तक जितना जो किया है ना, सबसे इम्पोर्टेंट बात पता है क्या है इस एग्जाम में? ये जो अभी वो मूवी भी आई थी, कौन सी, 12th फेल, हाँ, वो जो रीस्टार्ट वाला कॉन्सेप्ट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, और वो लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हिस्ट्री कर लिया, अभी वो दिमाग से हटा दो लॉ, अभी सिविल सर्विसेज करना है, अभी बस उसी पे कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है। यू विल हैव, अभी सिविल सर्विसेज करने के बाद तुम्हारे पास ऑप्शन होगा, यू कैन डू अ लॉ डिग्री, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, ठीक है ना। सो एनी अदर क्वेश्चंस? How long did it take you to crack into exam? How long did it take me to? How many अरे वो- attempts did you have? हाँ, तो एक्चुअली मेरा ऐसा था यार, मैं ना स्टार्टिंग से बहुत जर्नलिस्ट टाइप का इंसान था। आई यूज्ड टू रीड स्टफ वैसे भी, तो आई यूज्ड टू रीड न्यूज़पेपर व्हेन आई वाज इन कॉलेज, परहैप्स लाइब्रेरी में जाके तभी कंपेयर कर पाता था कि हिंदू और एक्सप्रेस में क्या डिफरेंस है। आई कैन चूज कि एक्सप्रेस के साथ जाना है हिंदू के साथ। तो it has been a long journey. Even before I actually started thinking about this exam, I was kind of preparing for it subconsciously, right? So I will not say कि ये 1 साल का काम है, 2 साल का काम है. It takes time actually. But if you do a technical, concentrated preparation for a year, which includes, I guess, sir must have told you the structure. पहले 3-4 महीने में आप option cover करो, फिर GS पे concentrate करो, last में prelims में करो. तो if you go by that structure, then you can crack it in 1-2 years. So there is no problem in it. मेरा थोड़ा इसलिए लंबा प्रोसेस है बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा वेंचर करके आया हूँ कि मतलब मैंने प्रैक्टिस भी करा है, उसके बाद आई वेंट टू दिस वर्किंग विद द PSU as well, and then I think so since my road has been a road not taken, you don't have to go through that. You can straight away lot reach. of stories about roads. Actually, मैंने तो मैं थोड़ा सर मतलब मैं थोड़ा अलग तरह का एस्पिरेंट हूँ, ठीक है। कुछ बहुत सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं सर, उनसे भी मिलवा देंगे आपको। तो वो मैं नहीं हूँ थोड़ा, मैंने अपने डैफ में भी रोड ट्रिप लिख दिया था उसमें हॉबीज में। तो वो चेयरमैन का फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि रोड ट्रिप पे लास्ट मतलब कब गए थे, बट ये सब सर ने प्रिपेयर करके चले ये तो आएगा ही क्वेश्चन, तो बना के ले जा। तो मैंने पूरा रोड ट्रिप पेंट कर दिया अपने सामने कहाँ से कहाँ गया था। तो मेरा थोड़ा अलग रहा है जर्नी, बट हाँ देयर आर अदर सीरियस एस्पिरेंट्स जिनकी वीडियो है, देख लेना। बट मेरा तो इतना ही है कंट्रीब्यूशन यार, तुम लोग बेस्ट दो अपना, डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर, ठीक है। अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो यू विल डू समथिंग बेटर देन दिस, ठीक है। दिस एक्सपीरियंस विल ऑलवेज काउंट, द नॉलेज यू गेन्ड एज अ सीरियस एस्पिरेंट आई एम टेलिंग, बिकॉज अगर सीरियस नहीं हो तो फिर कुछ नहीं मिलेगा, 2-3 साल वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। बट एज अ सीरियस एस्पिरेंट इफ यू डू नॉट क्रैक दिस एग्जाम यू विल डू बेटर देन a person who's cracking this exam, I can assure you that. Because दो चीज़ें होंगी, एक तो तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा और दूसरा वो प्रॉब्लम होगा तुम्हारे दिमाग में कि मेरा कैसे नहीं हुआ, तो फिर वो चीज़ें वो करवा देता है बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो just be sure of that and go ahead. Any other question? Psychology as an option. I have no idea actually. Rahul से बात कर रहे थे। I have a friend who मतलब हमारे म्यूचुअल फ्रेंड ये है who's done psychology option. So all the optionals are actually good, पता है ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ऑप्शनल कुछ ज़्यादा स्कोरिंग है, जैसे एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी आजकल बहुत स्कोरिंग हो गया है, ठीक है।
कुछ है जो इतने ज़्यादा स्कोरिंग नहीं है, लेकिन फिर इंसान ना दोनों तरफ मतलब स्कोरिंग और इंटरेस्ट दोनों देखता है। जैसे मैंने ज़्यादा इंटरेस्ट भी दिख लिया तो उससे लॉक कर रहा हूँ, लेकिन स्कोरिंग और इंटरेस्ट दोनों देखो तो आ जाते सब में। एंड इफ यू स्कोर 280 odd marks in your optional and decently in other GSS and your interview ना और ऐसे, तो you will be in top 50, you will get an IS, IS मिल जाएगा तुमको। तो you don't have to really worry इतना ज़्यादा कि मतलब क्या होगा, बट इसलिए थोड़ा इंटरेस्ट और थोड़ा उसमें क्या स्कोरिंग रहा है, कैसा मटेरियल अवेलेबल है मार्केट में, you will have to research that and accordingly choose an option. So psychology is not bad, but you have to read more on it कि कैसा रहेगा तुम्हारे लिए। What was your preference? Sorry? What did you get? What was your I did not, अभी तो यार कुछ भी नहीं है एक्चुअली, वो सर्विस एलोकेशन अभी तक आया नहीं, वेरी लेट ऑन दैट। बट मेरा प्रेफरेंस हाँ IAS IFS था, फिर IPS और IRS, तो उन चारों में से कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। ठीक है। Something else? वही अच्छा है। हाँ सही है, फिर अगली चीज़ के लिए सोचेंगे। Anything else? Are you all of you are fresh graduates या फिर किसी के पास work ex वगैरह भी है? not postgraduate? Fresh graduates है सब? Majority. Majority of fresh, तो ठीक है ना, अभी तो right after college, हाँ बताइए सर। I do job in political governments. That's great। तो जो जॉब वाले लोग हैं उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है सीन, ठीक है, बट उनके लिए एक रिलैक्सेशन भी है कि इन लोगों को हमेशा डर लगता रहेगा कि ओ माय गॉड नहीं हुआ तो क्या करेंगे, आप तो ऑलरेडी कर रहे हो, तो रिलैक्स है थोड़ा ब्रेन ना, तो ठीक है। आप यू विल हैव टू मेक अ स्ट्रिक्टर शेड्यूल एज कम्पेयर टू पीपल हु आर नॉट वर्किंग, बट दैट्स फाइन, यू कैन क्लियर इट विद द जॉब एज वेल। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि तुमको पूरे दिन पढ़ना, मतलब ये तो नहीं है, कोई नहीं पढ़ सकता, है ना सर? पूछ रहा हूँ, मैं कंफर्म कर रहा हूँ। मैक्सिमम कंसंट्रेशन कितने देर हो सकता है? देखो मैं बता देता हूँ, मेरा 888 रूल वाला है, तो उसमें 8 घंटे से ज़्यादा इंसान कंसंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ सकता फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ऑब्वियसली जब एग्जाम पास आता है तब 12-13 घंटे पढ़ सकते हो, बट लॉन्गर अभी तुमको 1 साल पढ़ना है तो 8 घंटे से ज़्यादा एक दिन में नहीं पढ़ सकते, वो भी महीने के 25-26 दिन ही हो पाएगा, 4-5 दिन जाएंगे ऐसे ही, ठीक है, एंड दैट इज़ फाइन, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे अगर तुम्हारा ब्रेन रिलैक्स नहीं कर पाएगा तो फिर वो कुछ भी नया इन्फॉर्मेशन कंज्यूम नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए वो 8 घंटे वाला रूल रखो, ठीक है। क्लासेस के अलावा आई गेस क्लासेस कितने घंटे होते थे? वीकेंड से 500। हाँ, तो फिर वीकेंड के अलावा जो वीकडेज है उसमें इफ यू really study 8 hours a day on weekends, I don't think anything can stop you from becoming a civil servant, तो वो तो डन है, just give it 8 hours a day maximum, और उसमें भी ब्रेक लेना, सर वो एक ऐसे 50-10 का रूल होता है, 50 मिनट पढ़ो, 10 मिनट इधर उधर घूम के आ जाओ कहीं पे भी, मम्मी से बात कर लो, अगर फ्रेंड्स हैं आसपास उनसे बात कर लो, गाना सुन लो 2-3, फिर वापस आओ, फिर 50 मिनट दो, फिर 10 मिनट का ब्रेक लो, मतलब दैट इज व्हाट आई यूज्ड टू डू फॉर लॉन्गर सिटिंग आवर्स। अदरवाइज क्या होता है, 1.5 घंटा तुम लगातार पढ़ोगे, मैक्सिमम 2 घंटा टच करोगे, उसके बाद तुम पढ़ रहे हो लेकिन दिमाग में कुछ नहीं चल, ठीक है, उसका कोई फायदा नहीं है ना। ये एग्जाम ऐसा है जिसमें किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है, ठीक है, कि हाँ मम्मी देख रही है तो 4 घंटे लगा लिए, नहीं हो पाएगा यार, इसमें अपने लिए पढ़ना है, ठीक है। तो अगर एक पॉइंट पे भी लग रहा है कि मैं पढ़ रही हूँ या स्लैश पढ़ रहा हूँ और मेरे दिमाग में नहीं जा रही है चीज़, खड़े हो जाओ, घूम के आ जाओ, 10-15 मिनट किसी से बात कर लो, कुछ भी कर लो, रिफ्रेश हो जाओ, उसके बाद दोबारा से बैठ के पढ़ो, ठीक है। तो यू keep taking breaks because this is a marathon, it's not a sprint. You'll have to, you know, give that kind of time every day, and that is possible only when you take frequent breaks, ठीक है।